السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور سنت کو فالو بھی کرنے والے انشاءاللہ تعالی بن رہے ہوں گے، اور کچھ تجوید بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ تو دعا کے ساتھ ہم اپنی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو سنت ہے وہ ہے کہ تدفین کی سنتیں اور ان کے آداب۔ نمبر 1 کیا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو میت کے سر کے نیچے نرم پتھر یا مٹی وغیرہ بطور تکیہ رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر کے نیچے پتھر رکھا تھا۔ نمبر 2، قبر میں اگر کوئی چادر وغیرہ بچھانا ہو تو وہ بھی جائز ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ چادر بچھائی گئی، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ میرے علم میں خاصہ کی کوئی دلیل نہیں، واللہ عالم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کورس کی جانب۔ تو کورس ہے ہمارا آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 276 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ انشاءاللہ باقی ہم آگے جب پیج پلٹیں گے تو اس وقت شروع کریں گے، یہاں تک بہرحال ہم لوگ تطبیق کر لیتے ہیں۔ یمحق اللہ، اس میں جلالہ یعنی اللہ کا نام، یعنی اس کا جو اندر لام ہے وہ پر پڑا جائے گا قاف کے اوپر پیش کی وجہ سے۔ پھر آگے ہا کی پیش را کے ساتھ ملائیں گے، لیکن را تشدید ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑا جائے گا۔ یمحق اللہ الربا، یہاں پہ مد صریح الف کا قائم مقام ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہاں پہ را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن ما قبل پیش ہے اس لیے، اور باقی زیر کو صوت کے ساتھ ملائیں گے، لیکن صوت پر پڑھا جائے گا، حروف متعالیہ میں سے ہے اور دبا کے پڑھیں گے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، قاف بھی پر ہوگا اور مد صریح الف کے قائم مقام کے ساتھ ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ جب تا پہ وقف کریں گے تو ایک تو ہمز کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے، وقف بالاسکان یہاں پہ ہوگا۔ واللہ لا یحب، یہاں پہ اس میں جلالہ پر، لا پہ مد صریح الف، یحب با کو سختی سے ادا کریں گے تشدید کی وجہ سے۔ کل کفار اثیم، یہاں پہ کیا ہے، کفا، ٹھیک ہے، مد صریح الف اور ان پہ اظہار کا قاعدہ۔ اثیم، سی پہ نرمی بھی پہ ہے اور ساتھ میں کیا ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور جب میم پہ وقف کریں گے تو وقف بالاسکان۔ ان الذین آمنوا، غنہ کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، زیب کو نرمی کے ساتھ یا مدہ کرتے ہوئے، یعنی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ آمنو، آ پہ مد صریح الف کا قائم مقام، نو پہ مد صریح الواو، وعملوا الصالحات،
वाव को होंठों की नातमाम गुलाई से, आइन को वस्ते खलक से अदा करेंगे, लाम की पेश को सौत के साथ मिलाएंगे और आमिलु सौ पूर्व भी पढ़ना है। और ये क्या हो गया, कायम मुकाम यानी मद्दे असली बिल अलिफ का, तो इसका मतलब क्या है, सौद ज़बर अलिफ सौ, ठीक है। तो अलिफ भी इसके साथ ही पूर्व पढ़ा जाएगा क्योंकि सौद हरूफ मुस्तालिया में से है। सौलिहाती हा बारीक रगड़ खाती आवाज़ के साथ, और अलिफ मद्दा का क्या है, अलिफ मद्दा यहाँ पे हो रही है यानी मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम। व अक़ामुस्सलाता, ठीक है, क़ौ पुर पढ़ा जाएगा और मीम की पेश को सौत के साथ मिलाएंगे, जिस तरह क़ौ मद्दे असली बिल अलिफ ज़रूर करनी है, ठीक है। अब सौत को पुर पढ़ना है और ला मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम। अब ये वाव आप अमूमन क्या होता है, अक़ामुस्सलावाता, नहीं, वाव के ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। वाव यहाँ पे हज़फ होते हुए यहाँ पे हम आगे जाएंगे सोलाता, ठीक है, सौत पुर पढ़ना है। व आता ज़काता, अब ये देखें इस वाव के ऊपर पेश मौजूद है, व आ मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम, ता पे हरकत है और वाव के ऊपर खुद बजाते खुद पेश मौजूद है, और यही पेश हम जाके जा पे मिलाएंगे, ठीक है। जा सफीरिया लेटर है। व आता ज़काता, ठीक है। लहुम मीम पे इजहार शफवी, अजरुहुम जीम पे कलकला, मीम पे इजहार शफवी, इंद यहाँ पे क्या है, नून पे इख्फा करेंगे, इंद रब्बिहिम, ठीक है, रापुर पढ़ा जाएगा और मीम पे इजहार शफवी है और यहाँ पे वक्फ बिस्सुकून, क्योंकि ओरिजिनल उसकी साकिन की यानी सुकून की इलामत मौजूद है। वला मद्दे असली बिल अलिफ खौफुन, वाउलीन का कायदा, फुन पे इजहार का, तनवीन है ना और आगे आइन है, अलैहिम यालीन का कायदा, मी पे इजहार शफवी, वला मद्दे असली बिल अलिफ हुम इजहार शफवी, यहज़नून नू पे मद्दे असली बिल वाओ और नून पे जब वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। या अय्युहल्लज़ीना, यहाँ पे 4 हरकार लंबा करेंगे, अय्युहल, या को जल्दी से, ये नहीं अय्युहल इस तरह से नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पे 1 नंबर का कायदा होता है, ठीक है। अय्युहल्लज़ीना, री पे मद्दे असली बिल या, आमनुत्तकुल्लाह, आ पे मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम, नून की पेश को ता के साथ मिलाएंगे और कौफ की पेश आगे लाम के साथ मिलाएंगे, तो इसमें जलालापुर हो जाएगा, आमनुत्तकुल्लाह, तकुल्लाह, ठीक है। वज़रू, रू पे मद्दे असली बिल वाओ, मा बकिया मद्दे असली बिल अलिफ, बाकिया ये क्या है, कौफ, बकिया नहीं करना, बाकिया, ठीक है, बाकिया मिन रिबा, ये क्या है, रा बारीक और बा यहाँ पे 4 हरकत लंबा करेंगे, यहाँ पे नून पे इख्फा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम जी, आगे क्या है, कुंतुम मुमिनीन, अब ये क्या है, नून पे इख्फा, मीम के आगे मीम मुतहरिक है तो इदगाम शफवी का कायदा हो रहा है, और यहाँ पे वाव के ऊपर हमज़ा और जज़म, ये 2 इलामात अगर मौजूद हों तो क्या करना है, हमने झटका देना है। मुमिनीन, नी पे मद्दे असली बिल या और नून पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। अब आगे भी पढ़ लेते हैं, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। यहाँ पे क्या है, 281 तक आप लोगों का लेसन है। फ़इल्लम तत्बीक की जानिब बढ़ रहे हैं। फ़इल्लम, तो यहाँ पे हमने हमज़ा की ज़ेर को किसके साथ, लाम के साथ तशदीद की वजह से मिलाएंगे और मीम पे इज़हार शफवी। तफ़अलू, यहाँ पे मद्दे असली बिल वाव का कायदा। फ़अज़नू, यहाँ पे हम झटका देंगे, हमज़ा के ऊपर जज़म की इलामत है। ज़नू, नू पे मद्दे असली बिल वाव, बिहर्बिम मिनल्लाहि, यहाँ पे क्या है, रॉपुर पढ़ा जाएगा, रॉ साकिन माकबल
फ़तहा यानी ज़बर है। और यहाँ पे बिम, यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा है और इसमें जलाला पुर पढ़ा जाएगा किसकी वजह से, पीछे वाले हरफ पर ज़बर की वजह से। व रसूलिह, ठीक है, रॉपुर होगा, सू पे मद्देसली बिलवाओ और वक्फ किया है व रसूलिह, ठीक है, हाँ ज़रूर निकालना है। व इन तुब तुम, नून पे फ़ा, बा पे कलकला, मीम पे इजहार शफवी, फलाकुम इजहार शफवी, रुऊसु मद्देसली बिलवाओ, अम वालिकुम मद्देसली बिल अलिफ, मीम पे इजहार शफवी और वक्फ बिस सुकून। ला तज़लिमूना, यहाँ पे क्या है, ज़ पुर पढ़ा जाएगा, मु मद्देसरी बिलवाओ, वला तुज़लमून, ज़ नरमी के साथ पढ़ा जाएगा, हरूफ मुतालिया में से है, मुँह पे मद्देसरी बिलवाओ और वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। व इन काना, नून पे इख्फा, का पे मद्देसरी बिल अलिफ, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, जू मद्देसरी बिलवाओ, उस रोते, ठीक है, रापुर ते, यहाँ पे इफ़ा हकीकी, फनज़िरतुन, फनज़िरतुन, रापुर है, रापुर पढ़ा जाएगा, तून पे इजहार होगा, इला मद्देसरी बिल अलिफ का कायम मुकाम, मैसरोह, मई पे यालीन का कायदा और रोह ये गोलता हा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कैसे पढ़ेंगे, ताई मरबूता इसको कहते हैं, ठीक है, मैसरोह, ये भी वक्फ बिल इब्दाल का ही कायदे में आता है। वअन तसद्दक़ू, नून पे इख्फा, तसद्दा, तसद्दा, सौदपुर, दाल को सख्ती से अदा करते हुए तजदीद की वजह से ज़बर फिर पढ़ेंगे लेकिन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। तसद्दा, यहाँ कू को हम ज़रूर लंबा करेंगे क्योंकि मद्देसरी बिल वाव है। खैरुल लकुम, यालीन का कायदा, मीम पे इज़हार शफवी, इन कुंतुम तअलमून, नून पे फ़ा, इधर भी नून पे इख्फा, मीम पे इज़हार शफवी, मुँह पे मद्देसरी बिल वाव, नून पे जब वक्फ किया वक्फ बिल इस्कान। और एक चीज़ फिर मैं यहाँ पे ये था खैरुल्ला, यहाँ पे क्या है, इदगाम बिला गुन्ना, गुन्ने के बगैर अब हमने पढ़ना है ना, क्योंकि तनवीन पेश के बाद लाम आ रहा था, लाम और रा जहाँ पे भी आ जाए तनवीन के बाद तो हम इसे इदगाम नहीं करेंगे बल्कि इदगाम बिला गुन्ना का कायदा होता है। वत्तकू मद्देसली बिल वाओ और यौमन वाउलीन का कायदा, यौमन यहाँ पे इख्फा होगा तो रऊना रापुर हो जाएगा, ओ पे मद्देसली बिल वाओ और नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, फी ही यहाँ पे या मद्दा यानी मद्देसली बिल या, इल्लाह इसमें जलालापुर, सुम्मा गुन्ना करते हुए मीम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, तो वफ़ा मद्देसरी बिल अलिफ का कायम मुकाम, कुल्लु नफ्सिम्मा यहाँ पे क्या इदगाम माल गुन्ना का कायदा और साथ ही मद्देसरी बिल अलिफ का सबत, यहाँ पे ता पे जब हम्स किया जाता है तो ये वाली साउंड निकलती है, कसबत बत, ठीक है। वहुम ला युज़लमून, मीम पे इज़हार शफवी, ला पे मद्देसरी बिल अलिफ, युज़ नरमी के साथ भी और पुर भी पढ़ा जाएगा यानी मोटा करके, जिसको तफ़ख़ीम भी कहते हैं अरबिक में। युज़लमू, मुँह कहना, मुँह नहीं, नाक में से आवाज़ नहीं निकालनी, हरूफे मद्दा है और साथ में ये क्या है, वाव मद्दा कौन सा है, ये जौफ़े दहन से निकलता है, ठीक है, मुँह के खाली हिस्से से, मून इस तरीके से मद्देसरी बिल वाव और जब वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान, ठीक है। चलें, आप लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा हो गया है लेसन, नहीं भाई, अब आप लोग बड़े हो गए हैं तो खैर से माशाल्लाह अब आप लोगों को लेसन ज़्यादा मिलना चाहिए ना, है ना, ठीक है। चलें भाई, लेकिन हमें आने वालों का भी ख्याल रखना है क्योंकि आप लोगों ने अपने साथ और लोगों को भी जोड़ना है, अपने साथ मुराद क्या है, अपने अल्लाह के साथ, ठीक है, उनको भी जोड़ना है। तो अब ये कोशिश आप लोग करते चले जाएं और दीन में यहाँ पर आप लोग इस कुरान के पढ़ने में हर एक को अपने साथ जोड़ते चले जाएं, जैसे एक चेन होती है, ठीक है, चेन जब एक दूसरे के साथ वही सुराख मिलते हैं, चेन बनती है तो क्या होता है, इंसान मजबूत होता है ना, होता है कि नहीं, और चेन भी इसी तरह बहुत मजबूत बन जाती है, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।